مقدس لوکا رسول کی معرفت یسوع مسیح کا انجیلی بیان 23واں باب اس کی 34ویں آیت مقدسہ۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو آیت کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی۔ یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے اور یہ کلمہ عیسائی 53 باب اور اس کی 12ویں آیت کی تکمیل ہے، جس میں لکھا ہے، اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خداوند یسوع مسیح کو جمعے کی صبح 9 بجے کے قریب سلیب دی گئی اور یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح نے 9 کے 12 کے درمیان کہا۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والے پہلے الفاظ دعا کی صورت میں تھے، جو اس کے دشمنوں کے لیے کی گئی، اور یہی تو وہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ سلیب پر اس حالت میں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا خداوند یسوع مسیح کی دائمی اور غیر مشکوک محبت کا ثبوت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دعا کا آغاز باپ کہہ کر کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح پہ الزام تھا کہ یہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتا ہے اور خود کو خدا کا بیٹا بناتا ہے۔ اسی الزام کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو سلیب دی گئی۔ لیکن دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے باپ کہہ کے یہ ثابت کیا کہ وہ آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہے، وہ آج بھی اپنے اس کلیم پر قائم ہے اور اسے ہرگز نہیں مرا۔ اور باپ کہہ کے پکارنا اس بہت ہی غربت اور پاکیزگی اور اس باپ اور بیٹے کے رشتے کو ظاہر کرتا ہے جو خدا اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان تھا، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ گناہ کی گہرائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے گناہ کا تصور بڑا اوپری سا ہے۔ ہمیں اس کا تب پتہ چلتا ہے جب ہم بائبل کی باتوں کی روشنی میں آتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، لوگ اس لیے نور کے پاس آنا نہیں چاہتے کہ ان کے کام ان پر ظاہر نہ ہو جائیں۔ جب تک آپ نور کے پاس نہیں آتے، آپ کے کام آپ پر ظاہر نہیں ہوتے، اور جو نور کے پاس نہیں ہے اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یہ لوگ خدا کے بیٹے کو سلیب دے رہے تھے، یہ لوگ خدا کے بیٹے کو مصلوب کر رہے تھے، انہیں یہ بالکل بھی نہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی کس طرح لوگوں کو دقت دیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، انجیل کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، پاک روح کو جگہ جگہ ناراض کرتے ہیں، ہمیں اس کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دعا خداوند یسوع مسیح نے کس کے لیے کی۔ رومن فوج یا پیلاطوس کے لیے، کیونکہ رومن فوج جسے مصلوب کر رہے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ مسیح ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ انہیں نہیں تھا پتا کہ وہ کس کو مصلوب کرے، کیونکہ یہ ان کا روزمرہ کا کام تھا۔ وہ روز بہت سارے لوگوں کو سلیب دیتے تھے۔ پیلاطوس یہ جانتا تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے، یہ شخص راست باز ہے، وہ جس کو سلیب دے رہے ہیں وہ بے گناہ ہے۔ پیلاطوس یہ جانتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا اور مسیح اور یہودیت کے کانسیپٹ کو، ان کی تھیولوجی کو۔ اس کے بعد آتی ہے عام عوام۔ وہ جانتی تھی کہ خدا کون ہے، مسیح کون ہے، وہ جانتی تھی کہ اس کانسیپٹ کو، وہ جانتی تھی اس تھیولوجی کو، لیکن انہوں نے پھر بھی مسیح کا انکار کر دیا، اسے ماننے سے منع کر دیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے معجزوں کے ذریعے ان کو بار بار یہ ثابت کیا کہ یہ وہی مسیح ہے۔ لیکن یہ پھر بھی ایمان نہ لائے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیا، انہوں نے رد کر دیا۔ اس کے بعد آتے ہیں سردار کاہن اور باقی سردار۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ خداوند یسوع مسیح ان کے اختیار، ان کی سیٹ اور ان کی پوزیشن نہ دے دے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پوزیشن پر، ان کے اختیار پر کسی کا بھی خطرہ ہو، چاہے وہ خدا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ ان کے اختیار پر کسی کا خطرہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دعا خداوند یسوع مسیح نے کس کے لیے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے سب کے لیے کی۔ اس کی قدرت سب کے لیے لازوال ہے، اس کی قدرت کی ہم لمٹ نہیں کر سکتے، اس کے رحم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو بھی کوئی خداوند یسوع مسیح کے کلام کے لیے جان بوجھ کر کفر بکتا ہے، اس کے علاوہ سب کے لیے اس کی رحم اویلیبل ہے۔ آمین۔ اور معطر نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔
मुकद्दस लूका की अंजील 23वां बाब 34वीं आयत में लिखा है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा किसके लिए, किस वक्त और क्यों कहा? इस कलमे का उस वक्त क्या मतलब था और आज हमारी जिंदगियों में इसका क्या इखलाक है? आइए जानते हैं। ये कलमा माफी का कलमा है। ये यसाया 43वां बाब 12वीं आयत की तकमील है, जिसमें लिखा है, उसने खताकारों की शफायत की। खुदावंद यीशु मसीह को जुमे के रोज सुबह 9 बजे के करीब सलीब दिया गया और ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने 9 बजे के दरमियान कहा। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज दुआ की सूरत में थे, जो उसके दुश्मनों के लिए की गई। और यही तो वो हमें भी सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। सलीब पर इस हालत में दुआ करना खुदा की दायमी और गैर मशरूत मोहब्बत का सबूत है। उसने इस बात का आगाज बाप कहकर किया। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर यह इल्ज़ाम था कि ये अपने खुदा को बाप कहकर पुकारता है और अपने आप को खुदा का बेटा बनाता है। इसी इल्ज़ाम की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया। लेकिन देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने बाप कहकर ये बात साबित की कि वो आज भी अपनी बात पर कायम है और वो हरगिज़ नहीं मुड़ा। और बाप कहकर पुकारना उस बहुत ही कुर्बत और पाकीज़गी और बाप और बेटे के रिश्ते को जाहिर करता है, जो खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान था। क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? ये जुमला गुनाह की गहराइयों को जाहिर करता है। हमारे गुनाह का तस्वर बहुत बड़ा है। गुनाह किस तरह हमें मुसलसल गुनाहों में धकेल रहा होता है, हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। हमें लगता है हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और हम अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से चला रहे हैं, मगर गुनाह हमारी ज़िंदगी में गहरे असरात कर रहा होता है और हमें उसका पता ही नहीं चलता। हम कितने गुनहगार हैं और गुनाह हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा किरदार अदा कर रहा है। इस बात का उस वक्त पता चलता है जब हम कलाम की रोशनी में आते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग इसी वजह से नूर के पास आना नहीं चाहते ताकि उनके काम ज़ाहिर ना हो जाएं। जब तक हम नूर के पास नहीं आ जाते, हमारे काम ज़ाहिर नहीं होते। और जो लोग नूर के पास नहीं होते, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये लोग खुदा के बेटे को सलीब दे तो रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे, उनको मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उनके गुनाह की संगीनी का उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। हम आज भी लोगों को किस तरह परेशान करते हैं, अंजील की राह में रुकावटें बनते हैं, पाक रूह को जगह जगह नाराज़ करते हैं और हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं होता और हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम कलाम की सच्चाई, कलाम के नूर के पास आ जाते हैं, तो तभी हमारे गुनाह हम पर जाहिर होते हैं। आइए इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुआ किसके लिए की। सबसे पहले देखते हैं कि रोमन फौज या पिलातुस के लिए, क्योंकि रोमन फौज ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये क्या करते हैं। वो जिस इंसान को मसलूब कर रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि वो खुदा के बेटे को मसलूब कर रहे हैं, या वो यीशु मसीह को या वो बादशाहों के बादशाह को मसलूब कर रहे हैं। वो उनको इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, वो बिल्कुल भी इनको मालूम नहीं था। ये उनका रोज़ का काम था और वो रोज़ बहुत से लोगों को क्या करते थे, सलीब दिया करते थे।
लेकिन पिलातुस को मालूम था कि वो एक रास्तबाज शख्स है, ये बेगुनाह शख्स है, वो जिस शख्स को सलीब देने जा रहा है वो एक बेगुनाह शख्स है, वो इस बात को जानता था। इसके बाद आम आवाम थी, ये वो जानते थे कि मसीह कौन है, खुदा कौन है, वो इस चीज़ को तस्लीम करते थे, लेकिन ये यीशु को मानने के लिए तैयार ना थे। खुदा यीशु मसीह ने मौजों के तरीके से ज़रिए से अपनी कुदरत के ज़रिए से बार बार जाहिर किया कि वही मसीह है, लेकिन फिर भी ये लोग ईमान ना लाए। उन्होंने उन तमाम मौजों को, उनकी तमाम बातों को, कुदरत को यीशु मसीह ने दिखाई थी, उनको रद्द कर दिया। इसके बाद सरदार काहे और बाकी सरदार थे। यीशु उनकी पोजीशन के लिए, उनकी सीट के लिए एक खतरा थे। वो जानते थे कि उसकी पोजीशन को किसी तरह का भी खतरा ना हो, चाहे वो खुदा का बेटा ही हो। उन्होंने भी लोगों को मुस्तरद कर दिया, ना सिर्फ रद्द किया बल्कि आम आवाम को भी कहा उसे रद्द करें और बिल्कुल भी कबूल ना करें। और आवाम उनके बहकावे में आ गई। वो अच्छे चरवाहे बनने की बजाय फाड़ने वाले भेड़िए बन गए, क्योंकि आवाम ये एक्सेप्ट करती थी कि जब खुदा आएगा तो यही फकीह और फरीसी हमें बताएंगे, क्योंकि ये खुदा को बेहतर जानते और समझते हैं, यही लोग हमें बेहतर गाइड करेंगे। मगर उन्होंने लोगों को गाइड ना किया, बल्कि उल्टी राह पर लगा दिया कि मसीह को रद्द करें और उसे बिल्कुल उसका इनकार कर दें। अब सवाल पैदा होता है कि खुदा ने ये दुआ किसके लिए की? मैं समझती हूँ कि खुदा यीशु मसीह की रहमत लाजवाल है, उसकी रहमत की कोई इंतहा नहीं, हम उसकी हद को लिमिट नहीं कर सकते। उसने एक शख्स के लिए दुआ की और दूसरे के लिए ना की, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने सब के लिए दुआ की। उसकी माफ़ी सब के लिए अवेलेबल है। जो कोई जानबूझकर रूह कुद्स के खिलाफ कुफर बकता है, उसके लिए, उसके अलावा सब के लिए माफ़ी अवेलेबल है। कलाम मुकद्दस में भी लिखा है, जो जानबूझकर रूह कुद्स के खिलाफ कुफर बकेगा उसके लिए माफ़ी नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की रहमत हर किसी के लिए है। और इस बात का रिजल्ट फौरी तौर पर निकला जब डाकू, जिसे खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब किया गया, उसने नजात पाई और वो आम आवाम में से था। वो भी खुदावंद यीशु मसीह पर ताने मार रहा था, उसको बुरा भला कह रहा था, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी को भी तब्दील कर दिया और उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा तस्लीम कर लिया। इसके बाद सूबेदार ने नजात पाई, क्योंकि रोमन फौज में से था। इसके बाद सूबेदार ने नजात पाई, जो कि रोमन फौज में से था। और जब पेंटिकोस्ट पर पतरस ने ऐलान किया तो 3000 के करीब लोग शामिल हो गए, और उनमें से सरदार भी और यहूदी लीडर भी शामिल थे। पौलुस खुद एक फरीसी था, यीशु ने उसको भी नजात दी, लेकिन तमाम लोग फिर भी ईमान नहीं लाए। सिर्फ वही जिनके दिलों पर चोट लगी और जिनके दिलों को खुदावंद यीशु मसीह ने चेंज किया। खुदावंद यीशु मसीह के दुआ करने से हम क्या सीखते हैं आज? नंबर 1, सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों के लिए और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हमें बिल्कुल इसी तरह उनके लिए भी दुआ करनी है, उनके लिए अच्छा चाहना है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए किया। इसके बाद हम सीखते हैं कि सिर्फ मसीही मज़हब ही ऐसा मज़हब है जो माफ़ी सिखाता है, जो सिखाता है अपने दुश्मनों को माफ़ करो, अपने सताने वालों के लिए भला चाहो। सारे लोग बदला ताने देने की कोशिश करते हैं, सिर्फ मसीही है जो ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि दुआ करना भी सिखाता है, और यही मसीह के पैरोकार की निशानी है। और इसके बाद हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह
गुनाहों की माफ़ी देने की कुदरत रखते हैं। उसने सलीब पर डाकुओं के गुनाह माफ़ करके नजात देकर ये साबित किया कि गुनाह चाहे कोई भी हो, हालात जैसे भी हों, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से माफ़ी मांगेंगे तो वो आपको माफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार है। खुदावंद के खादिम चार्ल्स वर्जन ने कहा कि गुनाह चाहे किसी किस्म का भी हो, खुदा उसको माफ़ करने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। अगर आप उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुआ हमें भी आज हमारी शिफायत भी करता है। रोमियो के खत 8वां बाब 34वें आयत में लिखा है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ और हमारी शफायत भी करता है। और फिर इब्रानियों के नाम खत 7वां बाब 25वीं आयत में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। तो फिर आज हमें क्या करना है? हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है और सच्चे दिल से उसे नजात दहिंदा तस्लीम करना है। और आगे देखिए, इब्रानियों के खत 10वां बाब 22वीं आयत में लिखा है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलिए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।